الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلق يسبحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، رات کافی ہو چکی ہے، مختصر خطبہ پڑھا، سیدھے اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں. یہ جو اسلام ہمیں اور آپ کو ملا ہے، مخالفوں نے ہر دور میں اعتراض کیا، کہیں پر انبیاء کرام پر، کسی جگہ پہ قرآن پر، حدیث پر، علماء پر، اور پھر دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ یہاں تک پہنچا. ہمیں اور آپ کو اسلام ایسے ہی نہیں ملا ہے، اس کے لیے صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں پیش کی ہے، تب جا کر ہم اور آپ مسلمان کہلاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض یہاں تک ہوا، جو کام آپ کے لیے ناممکن تھا، لیکن پھر اللہ نے ایسا معجزہ آپ کو عطا کیا کہ وہ آپ کے لیے وہ آسان ہو گیا، حالانکہ سوچا جائے تو وہ ناممکن تھا. ابو جہل نے کہا اے نبی، اے محمد، ہم تو آپ کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے رشی بنا کر بھیجا ہے، پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تو دنیا میں ہماری آپ سے ایک شرط ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کا آپ کے اوپر ایمان ہے ہی نہیں، کافر تو آپ کو جادوگر کہتے ہیں. اے محمد، ہم بھی آپ کے لیے ایک شرط رکھ رہے ہیں، اگر یہ شرط پوری ہو جائے، آپ پوری کر دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، اور یہ کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو رشی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، آپ عام انسان نہیں ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد ابو جہل نے کہا اے محمد، ہم آپ سے
یہ شرط رکھ رہے ہیں یہ جو چاند آپ اوپر دیکھ رہے ہیں ان چاند کو 2 ٹکڑا کر دکھائیے، اگر آپ چاند کا 2 ٹکڑا کرتے ہیں تو ہم آپ کو نبی مان جائیں گے۔ اور یہ شرط لگانے کے لیے ابو جہل صرف خود ہی پر بس نہیں کیا، اپنے ایک ساتھی حبیب کو بلایا اور ان سے کہا کیا ہے میرے دوست، ہر جگہ تم میری مدد کرتے ہو، یہاں پر بھی مدد کرو، سنا ہو کہ تم بڑے ماہر ہو لوگوں کو پھنسانے میں، اپنے جال میں پھنسانے کے لیے، یہ محمد اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، اے فلا اے میرے دوست اس کو ایسے جال میں پھنساؤ تاکہ یہ پھنس جائیں اور اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ نہ کریں۔ پھر انہوں نے سوال کیا اے محمد واقعی اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ چاند کے 2 ٹکڑا کر دکھائیے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ کہہ کر ابو جہل ہنسنے لگے کہ محمد تو فیل ہو گئے، محمد تو اپنے امتحان میں فیل ہو گئے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں قدرت کاملہ دیکھیے، اللہ کی کاریگری دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑوں میں بڑھ گئے، اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اور ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چاند جب 2 ٹکڑا ہوا تو اس میں تھوڑی سی ہی لکیر بنی تھی، نہیں، دیکھنے والے نے دیکھا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اور پہاڑ کے اس جانب ایک ٹکڑا اور اس جانب ایک ٹکڑا دیکھنے میں کافی فاصلہ نظر آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں پھر اس کے بعد آپ نے اس چاند کو جوڑ بھی دیا، آپ نے اس چاند کو جوڑ بھی دیا۔ جب جوڑ دیا تو یہ کہنے لگے ابو جہل، ان کے ساتھی کہنے لگے محمد اب کیا کیا جائے، سچ میں جادوگر ہوں؟ لیکن اس کے دوست نے کہا اے ابو جہل یہ محمد اگر جادوگر ہوتے جادو دنیا میں چل سکتا ہے، جادو کا اثر دنیا میں ہو سکتا ہے، لیکن آسمان میں جادو کا اثر کیسے ہو گیا؟ حقیقت میں یہ جادوگر نہیں ہے، یہ رشی ہے، یہ پیغمبر ہے، کیونکہ جادو کا اثر دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، دنیا میں کسی انسان پر جادو ہو سکتا ہے، لیکن آسمان پر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند کیسے 2 ٹکڑے میں بٹ سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فلا اے ابو جہل اگر تمہیں شک ہے، اگر تمہیں شبہ ہے تو سنو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ہی سامنے چاند کا 2 ٹکڑا ہوا اور لوگوں کو دکھائی نہیں دیا؟ نہیں نہیں، جاؤ ملک شام کا سفر کرو، جاؤ سیریا کا سفر کرو، جاؤ عراق کا سفر کرو، جاؤ پوری دنیا کا سفر کرو، جہاں جہاں پر لوگوں نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے سب گواہی دیں گے کہ ہاں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ یعنی جادو اگر ہوتا تو کچھ ہی لوگ دیکھ پاتے، لیکن یہ جادو نہیں ہے، جاؤ پتہ کرو۔ جب پتہ کیا گیا تو لوگوں نے کہا ہاں ہم اپنے ملک سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ خود بھارت کی بات ہے، بھارت کے اندر ایک راجا تھا جن کا نام راجا بھوج ہے، باغیچے میں بیٹھے ہوئے کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھ رہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بڑا تعجب ہوا، آشچرے میں پڑ گئے، چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہو گئے؟ بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، کیا بات ہے آسمان پر چاند کیوں 2 ٹکڑے ہو گئے؟ چاند 2 ٹکڑے میں کیوں بڑھ گئے؟ جادوگروں نے کہا اے فلا راجا بھوج چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہم نے بھویشیہ قرآن میں پڑھا ہے ایک شخص آئے گا، ایک شخص پیدا ہوگا جن کے باپ انتقال کر جائیں گے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے انہی کا کام ہوگا، کیونکہ جادوگروں کا یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادوگر جب جادو کریں گے تو دنیا میں کر سکتا ہے، دنیا میں جادو کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن آسمان پہ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ راجا بھوج وہاں سے چل دیے، راجا بھوج ایودھیا چلے گئے۔ ایودھیا جانے کے بعد ایودھیا وہ لوگ مراد لیتے ہیں کہ ہندوستان ہی کی سرزمین ہے۔ راجا بھوج چلے گئے ایودھیا، جس کا ہم معنی لیتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں جنگ لڑنا حرام ہو، جہاں قتل و غارت گیری کرنا حرام ہو، جہاں پہ لڑائی حرام ہو، جہاں پہ خون خرابہ حرام ہو، وہاں پر چلے گئے اور جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ کیے اور محمد کے پاس چلے گئے، اور جانے کے بعد کہتا ہے نمستے گرجا ناتھ مروستھل نواسنے،
नमस्ते है मोहम्मद, हम नमा कर रहे हैं, हम सर झुका रहे हैं, क्योंकि वो गैरुल्लाह को मान रहे थे, अल्लाह के अलावा गैर को मान रहे थे, गैर को सजदा कर रहे थे। इसलिए मोहम्मद को नमस्ते का गिरजानाथ मरुस्थल निवासी ने, रेगिस्तान इलाके में पैदा होने वाले मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद आपने फरमाया चांद के 2 टुकड़े किसने किए हैं? उसने कहा मैंने चांद के 2 टुकड़े किए। कि हम कैसे यकीन करें? मेरा 2-3 सवाल है, अगर इन सवाल का जवाब दे देंगे तो हम मान जाएंगे कि मोहम्मद आप ही ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं, हम मान जाएंगे। पहला सवाल कि आए मोहम्मद आपके पिता का नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है? इसका मतलब ये है वो इम्तिहान लेना चाहते थे, आपके वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद साहब ने जवाब दिया क्या है नहीं बल्कि पूछो क्या था। इसका मतलब अब इस दुनिया में मेरे वालिद नहीं है। राजा भोज को यकीन हो गया, हाँ हाँ सच में आप ही पैगंबर हैं जिसकी पेशीन गोई भविष्य पुराण में की गई है, क्योंकि आपके पैदा होने से पहले आपके पिता के बारे में है, विष्णु यश के बारे में कि वो ध्यान कर जाएगा। सच में आप ही है जिसने चांद के 2 टुकड़े किए। उसके बाद राजा भोज का ईमान वहां पे ताजा हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, एतराज नबी अकरम पर देखिए कैसा कैसा एतराज कि चांद के 2 टुकड़े कर दिखाइए, लेकिन आपने दिखा दिया। लेकिन हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे हिदायत देना चाहे उसे ही हिदायत मिलेगी, उसके अलावा आप लाखों समझाइए किसी को, उसको हिदायत नहीं मिलने वाली है। आपका काम है समझाना, और हिदायत देने का काम अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। अगर उसको हिदायत मिलनी थी, अगर मुसलमान होना था, उसी जगह पे मुसलमान हो जाते। लेकिन हट धर्मी देखिए मुसलमान नहीं हुआ, कोई असबाब वहां पे बचा नहीं, क्योंकि जादूगर कह रहा था, लेकिन इस जगह पे जादूगर भी नहीं कह सका, क्योंकि जादू का असर दुनिया में हो सकता है, आसमान पर नहीं हो सकता है, चांद पर नहीं हो सकता है। जिस चांद के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहार वश्शम्स वल कमर कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। ऐ लोगों, हमने चांद को पैदा किया, हमने सूरज को पैदा किया, और सब अपने महवर में गर्दिश कर रहे हैं, सब तैर रहे हैं। चांद तैर रहे हैं, सूरज तैर रहे हैं, सब एक वक्त मुकर्ररा तक महदूद जगह तक दौड़ता रहता है। आपको बता दूं चांद के बारे में, चांद के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। चांद जो रात में चमकता है, इनके पास खुद की रोशनी नहीं है, बल्कि ये चांद आईने का काम करता है। यानी सूरज की रोशनी जब चांद तक पड़ती है और फिर चांद रात में हमें और आपको रोशनी देता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये साइंसी बात थी, मैंने आपको बता दिया। चांद के पास कोई रोशनी नहीं है और ये चांद दौड़ता रहता है। लेकिन चांद और सूरज में फर्क इतना है कि ये चांद जो है हमारी जमीन का चक्कर लगाता है और सूरज अपने पूरे सोलर सिस्टम परिवार के साथ चक्कर लगाता है। इसीलिए साइंसदान एतराज करते रहते हैं कि कुरान ने कहा वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। कुरान कहता है कि सूरज दौड़ता रहता है। कहाँ सूरज दौड़ता है? लेकिन हाँ, हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साइंस ने माना सूरज दौड़ता है, लेकिन वो किसी का चक्कर नहीं लगाता है, अपने सोलर सिस्टम के साथ दौड़ता है। और ये पृथ्वी जो है, ये जमीन जो है, सूरज का चक्कर लगाती है और सूरज के चक्कर लगाने की वजह से हमारे यहाँ मौसम बदलते हैं। यहाँ पर कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी ठंडी का मौसम आता है। जिस जमीन पर हम और आप रहते हैं, ये जमीन चक्कर लगाती है, जमीन घूमती है और सूरज इसके बीच में, और इसी जमीन का चक्कर चांद लगाता है। और यही वजह है कि जब ये तीनों एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, सूरज, चांद और पृथ्वी, ये जमीन, जब तीनों एक डायरेक्शन में आ जाता है, एक ही लाइन पे आ जाता है, एक ही दिशा में आ जाता है, तो मेरे भाइयों सूरज ग्रहण लगता है, चांद ग्रहण लगता है। ये साइंसी बात थी। इंशाअल्लाह जब किसी महफिल में, किसी मजलिस में मुझे पूरे साइंस के बारे में मौजू मिलेगा, मैं खुल के इसके बारे में तशरीह करूंगा। मैं यहाँ बताना ये चाहता हूँ कि साइंस ने जब कहा, साइंसदान ने ये माना कि हाँ ये जो चांद है इनके पास रोशनी नहीं है, तो हकीकत में
हैं, कुरान के कुछ ऐसे अल्फाज मिल रहे हैं जिनमें चांद के लिए अलग इस्तेमाल, अलग अल्फाज इस्तेमाल हुआ है, सूरज के लिए अलग इस्तेमाल, चांद के लिए, सूरज के लिए जिया का अल्फाज इस्तेमाल हुआ है और चांद के लिए नूर का इस्तेमाल हुआ है। पता चला नूर का माना रोशनी होता है। हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले ही इशारा कर दिया है, हम वहां तक नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन मेरे भाइयों है तो ही, क्योंकि कुरान कभी बदला नहीं जाएगा। बदलेंगे साइंस की बातें बदल जाएगी, आज कुछ है तो कल बदल सकती है, लेकिन कुरान की बात कभी नहीं बदल सकती है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद का 2 टुकड़ा किया और चांद के 2 टुकड़े करने के बाद उसको जोड़ दिया, तो आज साइंसदान एतराज कर रहे हैं कि चांद पर आदमी पहुंच गया है तो उस 2 टुकड़ा होने के जो निशान है उसको कहां दिखाई देता है। मेरे भाइयों, आप उनको जवाब दीजिए कि वो एक चमत्कारी थी, वो एक मौजज़ा था, और मौजज़ा के लिए जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बाकी रहे। हम और आप जब जादू देखते हैं, जादू में हमारी नजर बंद हो जाते हैं, वो क्या हमेशा वो चीज हमारे सामने बाकी रहती है? नहीं, हमारे लिए अभी चमत्कार तो कुरान है। कुरान में शक्ल कमर का है, चांद के 2 टुकड़े होने की वाज़ेह दलील मौजूद है। जैसे अभी 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहले व्यक्ति गए और चांद की जमीन को छूकर आए, और आज तक वहां आज भी उनके कदमों के निशान चांद पर मौजूद हैं। मेरे प्यारे साथियों, तो साइंसदान ये इतराज कर रहे हैं कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद का 2 टुकड़ा किया था, और आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि चांद की जमीन को छूकर आ गई है, तो कहां वो टुकड़ा, कहां वो निशान, कहां वो लकीर मिल रही है? मेरे भाइयों, तो उनका जवाब यही है, चमत्कारी के लिए जरूरी नहीं है कि उनका निशान बाकी रहे, वो वक्ती तौर पर था, उसके बाद उसको जोड़ दिया गया। लेकिन हाँ, आज भी साइंस एक बात कहती है कि हल्की सी एक लकीर चांद पर दिखाई देता है। हो सकता है चांद के 2 टुकड़े होने के बाद ये थोड़ी सी लकीर बच के रह गई, लेकिन हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इतनी सी बात मैं कह रहा हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एतराज हुआ था। एतराज करने वाले और सुमामा इब्न उसाल था, बहुत बड़ा काफिर। सुमामा इब्न उसाल नबी अकरम की तलाश में रहता था कि कब मिले उनको कत्ल कर दिया जाए। सहाबा किराम को गालियां दिया करते थे, नबी अकरम को कत्ल करने का मौका ढूंढा करते थे कि कब मिल जाए उनको कत्ल कर दिया जाए। सुमामा इब्न उसाल को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया। ये सुमामा नबी अकरम को कत्ल करने के लिए हमेशा अपना फौज लगाए रखते थे। यमामा का गवर्नर है, सरकार है सुमामा इब्न उसाल नबी अकरम की तलाश में रहते, कब मिले उनकी गर्दन पर तलवार चला दिए जाएं, लेकिन अरेस्ट हो गया। नबी अकरम को खबर हुई कि सुमामा इब्न उसाल पकड़ा गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। आपने फरमाया सुमामा इब्न उसाल को मस्जिद नबवी के सुतून से बांधो, पिलर से बांध दिया गया। सुमामा इब्न उसाल को एक पिलर में बांध दिया गया, और आप अगली सुबह को सुमामा इब्न उसाल के पास आते हैं, दुश्मन के पास आते हैं और पूछते हैं, सुमामा मा इंदका या सुमामा, सुमामा क्या हाल है? मा शानो का या सुमामा, सुमामा क्या हाल है? सुमामा का जवाब है, इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन, इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन व इन तुनइम तुनइम अला शाकिर। ऐ मोहम्मद, अगर आप मुझे कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर दीजिए, मारना चाहें तो मार दीजिए। अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो आप गुनहगार नहीं होंगे, आप मुजरिम नहीं होंगे, क्योंकि मैंने एक ऐसा जुर्म किया है, बहुत बड़ा जुर्म किया है, और जरूरी बनता है कि आप मुझे कत्ल कर दीजिए। लेकिन हाँ ऐ मोहम्मद, सुना हो आप बड़े रहमदिल है, सुना हो आप बड़े अच्छे इंसान है, अगर मुझे छोड़ना चाहे, मेरी बीबी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीबी बच्चे पर रहम करके मुझे छोड़ना चाहे तो ये आपका बड़ा एहसान होगा। आपने फरमाया सुमामा जाओ, मैंने तुझे आज छोड़ दिया। सुमामा इब्न उसाल को छोड़ दिया उस दिन, फिर आप चले गए। फिर दूसरे दिन आए, पूछा
सुमामा क्या हाल है? सुमामा का वही जवाब, इन तख्तुल तख्तुल ज़ाद मिन व इन तुनिम तुनिम अला शाकिर। आए मोहम्मद, छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए, कत्ल करना चाहे तो कत्ल कर दीजिए। आपने दूसरे दिन भी छोड़ दिया। फिर तीसरे दिन आए, सुमामा क्या करो तुम्हारे साथ? सुमामा ने कहा, आए मोहम्मद वही जवाब, इन तख्तुल ज़ाद मिन व इन तुनिम अला शाकिर। आए मोहम्मद वही जवाब, छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए, कत्ल करना चाहे तो कत्ल कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, सुमामा कहते हैं, आए मोहम्मद आप ये एक ऑर्डर कीजिए, मैं यमामा का गवर्नर हूं, अगर आपको माल चाहिए एक लेटर भेजता हूं, यमामा से गल्ला आ जाएगा, यमामा से माल आ जाएगा, यमामा से धन दौलत संपत्ति आ जाएंगे, यमामा से पैसे आ जाएंगे, अरबों खरबों रुपया आ जाएंगे। आए मोहम्मद ये एक बार तो आप कहिए, एक बार आप कहिए, आपकी जबान के मैं भूखा हूं, यमामा का गवर्नर हूं, आपको मैं थैली भर भर के पैसा दे सकता हूं। मेरे प्यारे साथियों, सुमामा जब बार बार कहने लगे, आपने कहा नहीं नहीं सुमामा, मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही आप देखते रहे, सोचते रहे, उसके बाद आपने सुमामा को आजाद कर दिया, छोड़ दिया। इतना बड़ा दुश्मन, लेकिन आपने सुमामा को छोड़ दिया। सुमामा चल दिए, सुमामा चलने लगे। चलते चलते थोड़ी ही दूर में एक कुआं नजर आया और उस कुएं के पास आकर बैठ गए। कुएं में कोई बर्तन वगैरह डाला, पानी उठाया और उसी जगह पे नहाया, उसी जगह पे नहाया और गुस्ल किया। सुमामा जल्दी दौड़ते हुए फिर नबी अकरम के पास आ गए। नबी अकरम ने देखा, सुमामा क्या बात है, तुम वापस क्यों आए? क्या किसी मेरे सहाबा ने तुझे मारा है? क्या किसी मेरे सहाबा ने तुझे परेशान किया है? क्या किसी बॉर्डर में मेरे सहाबी ने तुझे परेशान किया है? मेरी पुलिस ने तेरे रास्ता रोका है? कहा नहीं नहीं, आए मोहम्मद, जब तक मैं कैद था, आजाद था, जो चाहा आपको बोला, गालियां दी, लेकिन आपने मुझे आजाद कर दिया है। लेकिन ये आजादी आजादी नहीं है, आपने मुझे अपने दिलों की धड़कन बना लिया है, आपने मुझे दिल में जगह दे दिया है, आपने मुझे दिलों में बसा लिया है। हाय मोहम्मद, मैं अब इस्लाम लाना चाहता हूँ, आपके अखलाक की रस्सी ने मुझे बांध दिया है, मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ। उसी जगह पे कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसी जगह पे कलमा पढ़ता है और सुमामा इस्लाम लिया जाता है। इस्लाम लाने के बाद अल्लाह के नबी से कहते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं इस्लाम नहीं लाया था तब तक सुनिए मेरा हाल क्या था। ऐ मोहम्मद, मैं दुनिया में बहुत सारे बादशाहों का चेहरा देखा, ईरान का बादशाह देखा, मैंने बड़े बड़े मुल्क के बादशाह का चेहरा देखा, लेकिन ऐ मोहम्मद सबसे ज्यादा गंदा अगर किसी का चेहरा नजर आ रहा था और मुझे लग रहा था तो आपका चेहरा था, और सबसे गंदी बस्ती अगर कोई मुझे लग रही थी तो आपकी बस्ती थी, आपका शहर मुझे गंदा शहर लग रहा था। लेकिन ऐ मोहम्मद, अब मैं इस्लाम ला गया हूँ, इस्लाम ले आया हूँ, सबसे चेहरा अगर किसी का है तो आपका अच्छा है, और सबसे हसीन और जमील बस्ती और किसी की है तो आपकी है। मेरे प्यारे साथियों, फिर भी आपको गैरत नहीं आई और आपने सुमामा इब्न उसाल को कुछ नहीं कहा। ये था मेरे नबी की अखलाक, ये थे मेरे नबी की अखलाक, ये थे मेरे नबी की सीरत कि नबी पर एतराज, नबी को मारने की धमकियां, लेकिन आपने इस्लाम के खातिर तहफ्फुज़ इंसानियत देखिए, इस्लाम को बचाने की खातिर अपने अंदर गैरत पैदा नहीं किया, और सुमामा इब्न उसाल उस जगह पे इस्लाम कबूल कर लेता है। मेरे प्यारे साथियों, जिस चेहरा के बारे में कुरान कहता है वसिराजम मुनीरा, अल्लाह के रसूल के चेहरे को सिराज मुनीर कह रहा है। ऐ लोगों, मोहम्मद का चेहरा चमकने वाला चेहरा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा चमकता चेहरा है, जिस चेहरे के बारे में हजरत आयशा यूं शेर पढ़ा करती थी, लना शमसुन वलिल
आफाकी शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा फइन्न शम्स ततलु बाद फजरिन फइन्न शम्स ततलु बाद फजरिन व शम्सी तालिउन बाद इशा। हजरत आयशा ये शेर पढ़ा करती थी, लोगों हमारा एक सूरज है यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आसमान का एक सूरज है, मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, इसलिए कि फइन्न शम्स ततलु बाद फजरिन, आसमान का सूरज तो है जो दिन में फजर के बाद चमकता है, और मेरा सूरज तो है जो रात के वक्त मेरे बिस्तर पे आके चमकता है, इसलिए मेरा सूरज बेहतर है। मेरा एक सूरज है और आसमानों का एक सूरज है, मेरा सूरज बेहतर है आसमानों के सूरज से, क्योंकि आसमान का सूरज तो दिन में चमकता है, मेरा सूरज बिस्तर पे ईशा के बाद चमकता है। जिस चेहरे के बारे में कभी हजरत हस्सान इब्न साबित ने कहा था, वहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी वअजमल मिन कलम तलिदिन निसा। ऐ लोगों, दुनिया में हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा चेहरा, हसीन व जमील चेहरा आज तक मैंने नहीं देखा, और दुनिया की किसी औरत ने इतना हसीन व जमील बच्चा पैदा ही नहीं किया। वहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी वअजमल मिन कलम तलिदिन निसा। मुहम्मद रसूलुल्लाह जैसा हसीन चेहरा किसी का नहीं है, और दुनिया में किसी औरत ने इतना हसीन और जमील चेहरा बच्चा पैदा किया ही नहीं। मेरे प्यारे साथियों, इस चेहरे को सुमामा इब्न उसाल ने गंदा चेहरा कहा, इस चेहरे को सुमामा इब्न उसाल ने सबसे बुरा चेहरा कहा, लेकिन आपको गैरत नहीं आई। मेरे प्यारे साथियों, ये है इस्लाम, ये है एक अच्छे इंसान की सिफत जो इस्लाम बचाने के लिए अपने अंदर गैरत पैदा नहीं कर रहे हैं। हाँ, इस्लाम तो छोड़िए, उनके चेहरे को गंदा का, फिर भी आपको गैरत नहीं आई। आपको एक बात बता दो, एतराज तो बनी आदम पर लोग करते आ रहे हैं, कुफार करते आ रहे हैं। फरिश्तों ने भी एतराज किया था कि ये अल्लाह, ये इंसान है, इनको क्यों पैदा कर रहे हैं, इनको क्यों पैदा कर रहे हैं, ये तो जमीन में जाके फसाद मचाएगा, ये तो जमीन में खून खराबा करेगा। वाह, अल्लाह इसी का जवाब दिया है, वलकद करमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। ऐ लोगों, हमने बनी आदम को इज्जत दी, हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी, और हमने उन्हें सवारियां दी। समंदर में वो सफर करते हैं, वो खुशकी में सफर करते हैं, हमने बनी आदम को इज्जत दी। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरे प्यारे साथियों, वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। और अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को, बनी आदम को बहुत सारी मखलूक़ात पर फजीलत दी। इस जुमले के बारे में कहता है कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कि इंसान को फजीलत बख्शी, इसका मतलब यह है कि सारी मखलूक से इंसान बेहतर है। लेकिन हाँ, बेहतर तो है, लेकिन हर एतबार से बेहतर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये एक चीज आपको बता दो, इंसान इस एतबार से फरिश्तों से अफजल है, क्योंकि इंसान के पास शौहत है, इंसान के पास ख्वाहिश है, इंसान के पास गुस्सा है, और जानवरों के पास अकल नहीं है। और जानवरों के पास शौहत है, ख्वाहिश है, लेकिन उनके पास अकल नहीं है, और इंसान के पास अकल भी है, शौहत भी है, और इसी शौहत की वजह से इंसान गुनाह करता है, इसी ख्वाहिश की वजह से इंसान गुनाह करता है। बनी आदम पर जब एतराज फरिश्तों ने किया और अल्लाह से कहा, अल्लाह, ये बनी आदम रोए जमीन में गुनाह करते हैं, आय अल्लाह हम गुनाह करेंगे ही नहीं। अल्लाह उसी का जवाब दिया है, आए फरिश्तों, ये बनी आदम है, ये आदम के बेटे हैं, इनके पास ख्वाहिश है, इनके पास गुस्सा है, इसलिए ये गुनाह करते हैं। अगर तुम्हें भी ख्वाहिश दे दी जाए, तुम्हें भी शौहत दे दी जाए, तो तुम भी गुनाह करोगे। फरिश्तों ने कहा, नहीं नहीं, हम गुनाह करेंगे ही नहीं, हम कैसे गुनाह कर सकते हैं, हम गुनाह करेंगे ही नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो नेक फरिश्तों को, परहेजगार फरिश्तों को रूए जमीन
زمین پر اتار دیا، ہاروت اور ماروت کو روئے زمین پر اتار دیا، لیکن خدا کا مار، خدا کا عذاب دیکھیے، خدا کا قہر ان کے اوپر کیسے ٹوٹا۔ میرے بھائیو، ان کے پاس لوگ جادو سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اتنے میں ایک حسین و جمیل عورت آ گئی، ان کا حسن و جمال نے ان دو فرشتوں پر ایسا جادو کیا کہ یہ ان کے جادو میں، یہ ان کے فریب میں آ گئے اور ان کو ہر حال میں حاصل کرنے لگے۔ اس عورت نے شرط لگائی، اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو سنو، اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو سنو، تمہیں شرک کرنا پڑے گا، اگر شرک نہیں کرو گے تو تمہیں شراب پینی پڑے گی، اگر شراب نہیں پیو گے تو میرے شوہر کو قتل کرنا پڑے گا، میرے بچے کو قتل کرنا پڑے گا۔ وہ انسان، وہ فرشتے کہنے لگے، معصوم بچے کو کیوں قتل کرو، تمہارے بے گناہ شوہر کو کیوں قتل کرو، اور شرک کیوں کرو، شرک کرنے سے معافی نہیں ہے۔ ہاں شراب پی لیتا ہوں، اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے شراب پی لی اور شراب کے نشے میں آ گئے، مدھوس ہو گئے، جب شراب پی لیے تو شرک بھی کر بیٹھا اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا اور اس عورت کو حاصل کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر انسان کے پاس خواہش ہے تو انسان آٹومیٹک گناہ کر لیتا ہے، گناہ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، او فرشتوں، انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ ان کے پاس خواہش ہے، اس کو مال کی لالچ ہوتی ہے، اس کو دولت کی لالچ ہوتی ہے، اس کو کسی عورت کی لالچ ہوتی ہے، اس کو جائیداد کی لالچ ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے سورہ نازعات کے اندر فرمایا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے اپنے خواہش کو کنٹرول کیا، جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، جس نے اپنے خواہش کو کنٹرول کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جب فرشتوں نے ویسا کام انجام دے دیا، یہ گناہ کر لیے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو دو سزائیں دی، آخرت کی سزائیں دی اور دنیا کی سزائیں دی۔ فرشتوں نے دنیا کی سزا اختیار کر لی۔ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے؟ کسی مستند روایت سے نہیں ملا ہے، لیکن ہاں یہ بات صحیح ہے کہ انسان کے اندر خواہش ہے اور یہی خواہش کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرتے کرتے پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر شراب پی لیتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ شرک کر بیٹھتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ مال کے لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اپنے خواہش کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، پھر گناہ کے کام کر لیتا ہے، بدکاری کر لیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فرشتوں کے اندر خواہش نہیں ہے، فرشتے افضل ہے۔ اللہ رب العالمین اگر یہی چیز فرشتوں کے اندر بھی ڈال دیتے تو فرشتے بھی گناہ کرتے، لیکن ہاں فرشتوں کا معیار کچھ الگ ہے، انسان کا معیار کچھ الگ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ چیز ہے جب اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کرنا چاہا اور فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں، میں روئے زمین میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، اے فرشتوں، روئے زمین میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے اللہ، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہے، ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہے، تو روئے زمین میں آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ بنی آدم روئے زمین میں جائے گا اور فساد مچائے گا، روئے زمین میں جائے گا، یہ دنگا کرے گا، روئے زمین میں جائے گا، یہ خون خرابہ کرے گا۔ اللہ نے جواب دیا، او میرے فرشتوں، انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ انسان پر اعتراض، اور ایک ایسے منظر کی طرف میں آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا تھا، اے انسان، تو واقعی کتنا بڑا سخت دل ہے، کٹھور دل ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تیری قربانی پیش کر رہا ہوں۔
बताओ इस मामले में तेरी राय क्या है? बेटे ने जवाब दिया, क़ाला या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे अब्बू, अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया है आप उसको कर डालिए, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इंशाअल्लाह आप मुझे शाकिर पाएंगे, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। ऐ मेरे अब्बू, आप उसको कर डालिए और देरी ना कीजिए। बेटे बाप की मदद कर रहे हैं। जब कुर्बानी के लिए लिटाया गया और उसकी गर्दन पर छुरी चलाए जाने लगे, ये दरख्त के पत्ते हिलना बंद कर दिए, समंदर की लहरें जुम्बिशें करना बंद कर दिए, आसमान के पेशानी पर भी पसीना आ गया। मेरे प्यारे साथियों, जमीन समंदर की लहरें मौजें मारना बंद कर दिए। फरिश्ते उस वक्त कहने लगे, हाय अल्लाह, ये क्या देख रहा हूँ, ये कैसा इंसान है, ये कितना बड़ा इम्तिहान है, ये कितनी बड़ी आजमाइश है कि एक बाप अपने बेटे को ज़िबा कर रहा है। ऐ अल्लाह, मैं मानता हूँ कि तेरा हुक्म है और तूने अपने बंदों को दिया है, लेकिन बाप अपने बेटे के गले में कैसे छुरी चलाता है। या अल्लाह, मान गया वाकई इंसान कितना बड़ा खतरनाक है और वाकई इंसान कितना बड़ा तेरे आबिद है, कितना तेरे इबादत करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कहता है, ओ मेरे फरिश्तों, तुम तो एतराज कर रहे थे कि इंसान को क्यों पैदा कर रहे हो। देखो मेरा बंदा, मुझे देखा नहीं है, तुम तो मुझे देखे हो। देखो मेरा बंदा न जन्नत देखी, न जहन्नम देखी, न मुझको देखा है, फिर भी मैंने हुक्म दिया और ख्वाब दिखाया तो अपने बेटे को भी ज़िबा कर रहा है। ओ मेरे ओ फरिश्तों, देखो देखो, तुम कैसे बोल रहे थे इंसान को पैदा न करो। फरिश्ते कहने लगे, अल्लाह, आपने तो भी कह दिया था, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, एतराज जब फरिश्तों ने किया और कुछ ऐसे वाक़यात सामने आ गए तो फरिश्तों ने एतराज करना बंद कर दिया और उसके बाद इंसान को मग़फ़िरत की दुआएं देने लगे। बोलिए तब ना दोबारा आएगा, नहीं बोलिएगा सही सलामत में दिक्कत है ना। मेरे भाइयों, मुझे टाइम पहले ही दिया गया था, 7:30 बजे पहुंचने में ताख़ीर हुई, इसलिए फिर ये टाइम आखिर में मिला, इसलिए कि फिर मुझे कल मनिहारी निकलना है और सुबह ही निकलना है, इसलिए आपसे माज़रत का हूँ। 2-3 बातें बोलकर आपके सामने रुखसत लेता हूँ कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में तमाम मखलूक से या बहुत सारी मखलूक़ात से अफसल करार दिया। इसका मतलब आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर कोई इंसान काफ़ी बदसूरत थे और ताजमहल से भी अगर कोई खूबसूरत बिल्डिंग है, इमारत है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ताजमहल से ये इंसान खूबसूरत है। यानी इंसान से बढ़कर किसी चीज़ को आप खूबसूरती में तशबीह नहीं दे सकते हैं। तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने धरती पर सबसे पहला इंसान आदम को बनाया, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस सूरत में चाहा जोड़ दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहता है कि हमने इंसान को इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाज, मिले जुले नुत्फे से पैदा किया, यानी मर्द के और औरत के नुत्फे से पैदा किया। और इसी चीज़ को आज साइंस कहती है, बायोलॉजी में हमने पढ़ा है इस चीज़ के बारे में। और कुरान की बात देखिए, 1400 साल पहले कुरान ने 1400 साल पहले कहा कि हमने इंसान को मिले जुले नुत्फा से पैदा किया। और बायोलॉजी साइंस क्या कहती है इसके बारे में? जब मियाँ बीवी आपस में हम बिस्तर होता है, जब दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जब मर्द से स्पर्म बनता है, मनी निकलती है और उससे शुक्राणु बनता है, और फिर ये अपने रास्ते से
औरत की शर्मगाह के रास्ते से होकर निकलता है और फिर अपने उस जगह पे पहुंचता है जहां पर फर्टिलाइज होता है, जिसको इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, वहां पर फर्टिलाइज होता है, वहां पर मिलता है मर्द के शुक्राणु और औरत के अंदर जो ओवरी में ओवम बनता है, अंडा बनता है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं वहीं से बच्चे का निर्माण होता है, भ्रूण बनता है, फिर उसको धीरे धीरे लाकर वो अपने यूट्रस में आ जाता है, गर्भाशय में आ जाता है, बच्चेदानी में आ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, साइंस के ताल्लुक से मैं इंशाअल्लाह किसी जलसे में गुफ्तगू करूँगा। मैं यही से अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारी हिला हम सब तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस सही सही समझने की तौफीक अता फरमा। जब तक बचे रहें, जब तक हयात रहें, दीन पर रहें, खात्मा हो ईमान पर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।